دہشت گردوں کے بلوچستان میں متعدد مقامات پر بزدلانہ حملے، سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا مؤثر جواب۔ اب تک 12 دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں، متعدد زخمی۔ دہشت گردوں کے خاتمے تک سیکورٹی آپریشن جاری رہے گا۔ موسیٰ خیل بلوچستان میں دہشت گردوں کی فائرنگ، 23 افراد شہید۔ واقعہ پنجاب بلوچستان قومی شاہراہ پر راڑ عاشم کے قریب پیش آیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا بلوچستان کے علاقے موسیٰ خیل میں مسافر بس پر دہشت گرد حملے پر شدید غم و غصے کا اظہار، شدید مذمت۔ شہداء کے لیے دعائے مغفرت، لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ وزیر اعظم کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو واقعے کی فوری تحقیقات کی ہدایت۔ ملک میں کسی بھی قسم کی دہشت گردی قطعاً قبول نہیں۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی: وزیر اعظم۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی موسیٰ خیل میں مسافروں کے بہیمانہ قتل کی شدید الفاظ میں مذمت۔ دہشت گردوں کے حملے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ صدر مملکت کا دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کے قومی عزم کا اظہار۔ دہشت گرد ملک و قوم اور انسانیت کے دشمن ہیں۔ معصوم شہریوں کی انسانیت سوز قتل میں ملوث دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا: صدر مملکت۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی دہشت گردی کے بدترین واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ بزدلانہ کارروائی میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت و ہمدردی۔ واقعے میں ملوث دہشت گرد اور سہولت کار عبرتناک انجام سے بچ نہیں پائیں گے: عطا اللہ تارڑ۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے طلب۔ سینٹ کا اجلاس کل ہوگا۔ صدر مملکت نے پارلیمنٹ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا کا چہلم آج راولپنڈی، لاہور، کراچی، کوئٹہ اور پشاور سمیت ملک بھر میں جلوس روایتی راستوں پر نکالے جا رہے ہیں۔ جلوسوں کی فضائی نگرانی کی جائے گی۔ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش کی دینی اور روحانی خدمات کے لیے اظہار عقیدت۔ زائرین ہمارے مہمان ہیں، انہیں محبت اور احترام کے ساتھ لنگر پیش کیا جائے۔ مریم نواز شریف کی عرس میں آنے والے عقیدت مندوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی اور بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت۔ نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری۔ 24 گھنٹے کے دوران صہیونی حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 71 شہری شہید، 112 زخمی۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 40,405 ہو گئی، 93,468 زخمی۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کا حق خود ارادیت چھین کر 18 ستمبر کو الیکشن کا ڈرامہ رچانے کی تیاری۔ میڈیا مینجمنٹ اور ہارس ٹریڈنگ کے ریکارڈ ٹوٹنے لگے۔ 8 لاکھ فوجیوں نے پہلے ہی وادی میں نظام زندگی مفلوج اور خوف و ہراس کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ مودی سرکار کے نام نہاد الیکشن ریاستی عوام کے حوصلوں کو توڑ نہیں سکتے: جموں کشمیر کے مسلمانوں کا غیر متزلزل عزم۔ بھارتی وکلاء کی جانب سے اسرائیل کو جنگی ساز و سامان کی فراہمی پر تشویش کا اظہار۔ غیر ملکی سرزمین پر دہشت گردی اور انتشار پھیلانے کی سازش مودی سرکار کا مضبوط ہتھیار بن چکی ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ اسرائیل کی طرف سے فلسطین میں نسل کشی کی جا رہی ہے اور بھارت اس کی سہولت کاری کر رہا ہے: وکیل رہنما پرشانت بھوشن اور ایڈوکیٹ چندرادے سنگھ۔ بھارت میں ہندوؤں نے مسلمانوں کی نفرت میں ہر حد پار کر دی۔ مدھیہ پردیش میں اسلامو فوبیا کے خلاف احتجاج پر سینئر مسلم سیاستدان کا گھر مسمار۔ حاجی شہزاد علی نے ہندو پنڈت کی جانب سے توہین رسالت اور اسلامو فوبیا کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ مسلمانوں کے سروں سے چھت چھین لینا شدید ناانصافی ہے: کانگریس رہنما پرینکا گاندھی کا رد عمل۔
افغانستان میں خواتین کی تعلیم پر عائد پابندی مزید سخت، طالبات نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے ثانوی جماعت سے اوپر کے تعلیمی پروگرام بھی بند کر دیے۔ طالبات کے خلاف یہ ظالمانہ اقدام افغان وزارت تعلیم کے حکم پر اٹھایا گیا۔ طالبان نے لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھ کر ایک پوری نسل کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یونیسکو Norgard hasn't helped. Szoboszlai does well then to start the Liverpool attack. And once Diaz... اور آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں دھیر کوٹ سیاحتی میلے کا آغاز، 2 روزہ فیسٹیول کا مرکز۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور دن 12 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عظمیٰ چوہدری اور میں ہوں مناظر حسین۔ نیوز ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ تفصیلی خبروں کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے کہ 25 اور 26 اگست کی رات دہشت گردوں نے بلوچستان میں متعدد جگہوں پر بزدلانہ حملے کیے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ان حملوں کا مؤثر جواب دے رہے ہیں، جس میں اب تک 12 دہشت گرد جہنم واصل کیے جا چکے ہیں، جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں کے خاتمے تک سیکیورٹی آپریشن جاری رہے گا۔ افسوسناک خبر یہاں پر آپ کو دیں گے کہ موسیٰ خیل بلوچستان میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ سے 23 افراد شہید کر دیے۔ واقعہ پنجاب بلوچستان قومی شاہراہ پر راہ ڈاشم کے قریب پیش آیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے شاہراہ پر ناکے لگا کر مسافر بسوں سے لوگوں کو اتار کر گولیاں ماری۔ تمام افراد کا تعلق پنجاب سے بتایا جاتا ہے۔ 10 گاڑیاں نظر آتش بھی کر دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے دہشت گردی کے واقعے میں 23 معصوم انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے رؤساء سے دلی ہمدردی کا بھی اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملہ آور اور ان کے سہولت کار قانون کی گرفت سے بچ نہیں پائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے موسیٰ خیل میں مسافروں کے بے ایمانہ قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے دہشت گردوں کے حملے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت نے جاں بحق افراد کے لیے دعائے مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ بے گناہ انسانوں کا ظالمانہ قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ دہشت گرد ملک و قوم اور انسانیت کے دشمن ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کے قومی عزم کا اظہار کرتے ہوئے صدر مملکت کا کہنا تھا کہ معصوم شہریوں کے انسانیت سوز قتل میں ملوث دہشت گردوں کو کافر کردار تک پہنچانا ہوگا۔ اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بلوچستان کے علاقے موسیٰ خیل میں مسافر بس دہشت گرد حملے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم نے شہداء کے لیے دعائے مغفرت اور ان کے لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے مقامی انتظامیہ کو لواحقین کے ساتھ مکمل تعاون اور زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو واقعے کی فوری تحقیقات کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے ذمہ دار دہشت گردوں کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں گی۔ ملک میں کسی بھی قسم کی دہشت گردی قطعاً قبول نہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات، وزیر داخلہ، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، وزرائے اعلیٰ اور گورنر سمیت سیاسی شخصیات نے موسیٰ خیل میں دہشت گردوں کی بربریت کی شدید مذمت کی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے اپنے بیان میں قیمتی انسانوں کے جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور لواحقین کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں نے معصوم مسافروں کو نشانہ بنا کر بربریت کا مظاہرہ کیا۔ واقعے میں ملوث افراد اور سہولت کار عبرتناک انجام سے بچ نہیں پائیں گے۔ چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ دہشت گردوں نے معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر بربریت کا مظاہرہ کیا اور سفاکیت اور ظلم کی انتہا کی گئی۔
हुकूमत ने मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म कर रखा है। वज़ीर आला और गवर्नर्स ने भी मूसा खेल के करीब मुसाफिर बस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मसम्मत करते हुए लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ करते हुए कहा कि सोगवार खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। बुलेटिन में यहाँ पर शामिल करेंगे कुछ और अहम खबरें भी। आपको अपडेट करते हैं कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब कर लिए गए हैं। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे जबकि सेनेट का इजलास कल शाम 5 बजे तलब किया गया है। सदर मुमलिकत ने दोनों इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने हज़रत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ दाता गंजबख्श की दीनी और रूहानी खिदमात पर इजहार अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि हज़रत अली हजवेरी ने मोहब्बत, एहतराम, अमन और रवादारी के पैगाम को आम किया है। उन्होंने हज़रत अली हजवेरी के उर्स के मौके पर अक़ीदतमंदों की बेहतरीन मेज़बानी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा है कि उनके लिए लंगर और सबीलों पर नज़्म व ज़ब्त के ख़ुसूसी इंतज़ाम किए जाएँ। उन्होंने वार्डन्स और पुलिस अफसरान को हिदायत की है कि उर्स के दौरान ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया जाए। मुल्क भर में आज चहलुम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। रावलपिंडी में चहलम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से बरामद हुआ जो अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। आज रावलपिंडी में जुलूसों के पेश नज़र आम तातील का ऐलान किया गया है। ताहम एमरजेंसी और रिलीफ से वाबस्ता महकमे और इदारे इस हुक्म से मुस्तस्ना हैं। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में भी चहलम शहदाए करबला के सिलसिले में अलम, ताज़िये और जुलजनाह के जुलूस रवायती रास्तों पर गामजन हैं। मुल्क भर में जुलूसों की सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूसों की फ़ज़ाई निगरानी भी की जा रही है। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और बाज़ इलाकों में मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल है। कोयटा में चहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मरकजी जुलूस सुबह 8:30 बजे अलमदार रोड से बरामद हुआ। 21 दस्तों पर मुश्तमिल मरकजी जुलूस बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस की सरबराही में अलमदार रोड, शोहदा चौक से बरामद हुआ, जो तूही रोड, यजदान खान रोड और सराय नमक से होता हुआ बहिश्ते ज़ैनब कब्रिस्तान पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की हिफाजत के लिए 2000 से ज़ायद पुलिस और FC एहलकार तैनात हैं। कोयटा में दूसरा बड़ा मातमी जुलूस हज़ारा टाउन अली आबाद चौक से बरामद हुआ, जिसमें 23 मातमी दस्ते शामिल हैं। पाकिस्तान की बालिग नज़र सियासी क़ुव्वतों ने हर मुश्किल वक्त में हमेशा वतन अजीज़ की तरक्की और खुशहाली के लिए इत्तेहाद और यकजहती का मुज़ाहिरा किया। आज भी मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें मुल्की मसाइल के हल के लिए मुत्तहिद हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लाहौर में मुश्तरका कमेटी के इजलास की तफसील ताहिर जाफरी से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी के इजलास में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार और पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने मुश्तरका तौर पर सदारत की। इजलास में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, आजम नज़ीर तारड़ और मलिक अहमद खान, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से सैयद हसन मुर्तज़ा ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, नदीम अफजल चंद और अली हैदर गिलानी ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि दोनों सियासी जमातों का मकसद महंगाई, गुर्बत का खात्मा और सियासी और मुआशी इस्तेहकाम है। दोनों इस इत्तेहाद को, इस इत्तेहादी हुकूमत को आगे लेकर चलना चाहते हैं और तमाम तर जो फोकस है वो आम आदमी की परेशानियों पे है, महंगाई पर है, बेरोजगारी पर है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी का 5वां इजलास हफ्ते के रोज गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक्किद होगा। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। जिद्दत, इस्लाहात और अवामी खिदमत वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का विजन और अज़्म है। वज़ीर आज़म ने 1 माह के अंदर तमाम दफ्तरी फाइल्स पर काम ऑफिस के जरिए यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने आइंदा 2 हफ्तों में ऑफिस की नफाज पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। इस हवाले से वज़ीर आज़म ऑफिस के स्टाफ की ऑफिस की ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी सरकारी दफातर में ऑफिस के नफाज में किसी किस्म की सुस्त रवि कबूल नहीं की जाएगी। निज़ाम में शफाफियत और तेज़ी लाने के लिए ऑफिस का नफाज हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑफिस मुल्क में डिजिटाइजेशन के फ़रोग और गवर्नेंस की बेहतरी के लिए निहायत कलीदी इक़दाम है। वफाकी हुकूमत के दफातर को पेपरलेस बनाने के लिए वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मुतालिका इदारों को टास्क सौंप दिया गया है।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद को गैर मुल्की तिजारत पे 11% इजाफे पर दिली मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर मोहम्मद बिन जायद की क़यादत में UAE ने कारोबार में बैनुल अक़वामी एतमाद हासिल किया। उनके मुतहर्रिक क़यादत में UAE आलमी तिजारती मरकज़ बन गया है। गैर मुल्की तिजारत में इजाफा मजमूई इक़्तिसादी हिकमत अमली के बायस हुआ। UAE ने सनती तरक्की, कारोबारी माहौल और जिद्दत के फ़रोग़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दी। 2024 के पहले 6 माह में गैर मुल्की तिजारत में 397 अरब डॉलर इजाफा हुआ, जो गैर मुल्की तिजारत में तेल की बरामदात के अलावा एक बड़ा इजाफा है। PTI ने इस्लामाबाद के बाद लाहौर में भी कल होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। पार्टी रहनुमा शौकत बसरा ने मीनार पाकिस्तान पर होने वाले जलसे के इल्तवा की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि लाहौर में जलसे की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। गजा में इसराइल अपनी जारियत से बाज नहीं आ रहा। यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सह्यूनी हमलों में 71 फ़लस्तीनी शहीद और 112 ज़ख्मी हो गए। शोहदा में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। वस्ती और जनूबी गजा की पट्टी में इसराइली छापों और गोलाबारी के नतीजे में 19 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दीरुल बलाह पर इसराइली हमलों में 8 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि बोरिज पनाहगज़ीन कैंप पर सह्यूनी हमलों में 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा शहर के मगरबी इलाके और जनूबी शहर खान यूनस पर भी इसराइली बमबारी में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद हुए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली मसाले में फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 40,405 हो गई, जबकि 93,468 ज़ख्मी हुए। गजा के शिमाली, जनूबी और वस्ती इलाकों पर इसराइल के शदीद हमलों के दौरान इसराइल ने फ़लस्तीनियों को शिमाली गजा के नवाही इलाके से इनखला का हुक्म दिया है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक गजा में 6 माह से 5 साल तक की उम्र के 2,40,000 बच्चों की स्क्रीनिंग में 14,750 बच्चों में शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत की तशख़ीस हुई है। उधर तल अवीव में हज़ारों की तादाद में लोगों ने इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इसराइली परचम लहराए। आयरलैंड के दारुल-हुकूमत डबलिन में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में हज़ारों मुजाहिरीन ने अमरीका से मुतालबा किया कि वो इसराइल की हिमायत बंद करे और गजा में फ़ौरी जंग बंदी यकीनी बनाए। भारतीय वकला ने हुकूमत की जानिब से इसराइल को जंगी साज़ो सामान की बरामदात पर तशवीश का इजहार किया है। गैर मुल्की सरजमीन पर दहशतगर्दी और इंतशार फैलाने की साजिश अब मोदी सरकार का मजबूत हथियार बन चुकी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण के मुताबिक ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन में नस्ल कुशी की जा रही है और भारत वाज़ेह तौर पर इस नस्ल कुशी की सहूलत कारी कर रहा है। एडवोकेट चंदर अदे सिंह ने भारत से इसराइल को हथियारों की फ्राहमी फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि भारत अपने ही मुल्की कानून के खिलाफ काम कर रहा है। भारत ने 1959 में नस्ल कुशी के कन्वेंशन की तौसीक की। वाज़ेह रहे कि रवां साल जून में गजा में एक स्कूल पर इसराइल की बमबारी के बाद मेड इन इंडिया के लेबल वाले मिसाइल बरामद किए गए थे। भारत को मकबूजा कश्मीर के बाद अब गजा में नस्ल कुशी की सहूलतकारी पर जवाबदेह होना पड़ेगा। और मोदी के भारत में हिंदुओं ने मुसलमानों की नफरत में हर हद पार कर दी। भारतीय हुकाम ने मोदी के हिंदुत्वा गढ़ मध्य प्रदेश में सीनियर मुस्लिम सियासतदान हाजी शहजाद अली का घर मिस्मार कर दिया। भारतीय पंडित की जानिब से तौहीन रिसालत और इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाने पर मुस्लिम सियासतदान के सर से छत छीन ली गई। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा, पंडित रामगिरी महाराज के खिलाफ कार्रवाई की बजाय मुस्लिम साबिक कांग्रेस रहनुमा हाजी शहजाद अली के घर पर बुलडोजर चलाना शर्मनाक हरकत है। गुज़श्ता हफ्ते पंडित रामगिरी ने तकरीब से खिताब के दौरान इस्लाम मुखालिफ बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के सरों से छत छीन लेना शदीद नाइंसाफ़ी है। बुलडोजर के जरिए घर मिस्मार करना मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है, इसे ख़त्म होना चाहिए। इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से मुस्लिम नफरत में गुज़श्ता 2 सालों के दौरान 1,50,000 से ज़ायद घर मिस्मार और 7,38,000 लोग बेघर हो चुके हैं। भारत के इस भयानक चेहरे को आलमी सतह पर शदीद नफरत और तनकीद का सामना है। भारत की जानिब से एक बार फिर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंतखाबी ढोंग रचाने की तैयारी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम गुज़श्ता 7 दहाइयों से जारी हैं।
سب سے بڑی جمہوریت کا دعویدار بھارت خطے میں فسطائیت کو فروغ دے رہا ہے۔ 2019 میں مودی سرکار نے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر کے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کر دی تھی۔ مقبوضہ وادی میں تعینات 8 لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں نے وادی کشمیر میں نظام زندگی مفلوج کر رکھا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد مودی سرکار پہلی دفعہ مقبوضہ علاقے میں الیکشن منعقد کروا رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے کروائے جانے والے انتخابات کی تاریخ انتہائی بھیانک ہے۔ 1951 سے لے کر 2019 تک بھارت نے مقبوضہ وادی میں جتنے بھی نام نہاد الیکشنز کروائے وہ تمام دھاندلی، دھوکہ دہی اور بددیانتی پر مشتمل تھے۔ ان انتخابات کا واحد مقصد عالمی برادری کو گمراہ کرنا تھا۔ ہر الیکشن کے بعد بھارت کے اندر سے ہی سیاسی حریفوں اور تجزیہ کاروں نے الیکشن کی شفافیت پر سوالات اٹھائے۔ بھارتی سرکار نے ہمیشہ الیکشن سے قبل مقبوضہ علاقے میں میڈیا مینجمنٹ اور ہارس ٹریڈنگ کی ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ کشمیر میں ایک بار پھر 18 ستمبر 2024 کو الیکشن کا ڈرامہ رچانے جا رہی ہے۔ مودی سرکار کے نام نہاد انتخابات کشمیریوں کے غیر متزلزل عزم اور حوصلے کو کمزور نہیں کر سکتے۔ اور مقبوضہ جموں کشمیر سے ہی ایک اور خبر آپ کو دیتے ہیں، جہاں ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے بھارت اور مقبوضہ علاقے کی مختلف جیلوں میں قید کشمیریوں کی حالت زار پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق پارٹی کے ترجمان ایڈوکیٹ ارشد اقبال نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ سینکڑوں کشمیری نظربند شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ بہت سے نظربند مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ترجمان نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں۔ لہ ایپیکس باڈی نے لداخ سے نئی دلی تک پیدل مارچ کا اعلان کیا ہے تاکہ سیاسی حقوق سمیت اپنے 4 نکاتی ایجنڈے پر بات چیت کے لیے بھارتی حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ یہ مارچ 1 ستمبر سے شروع ہوگا، جس کی قیادت ماحولیاتی کارکن سونم وانگ چک کریں گے۔ کھیلوں کی خبروں میں بات کریں گے کرکٹ کی۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا دوسرا میچ 30 اگست سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بنگلہ دیش نے پاکستان کو ہرا دیا۔ راولپنڈی میں پہلے ٹیسٹ میں مہمان ٹیم نے پاکستان کے خلاف 10 وکٹوں سے کامیابی حاصل کر کے 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ مشفق الرحیم پلیئر آف دا میچ قرار پائے۔ اسی حوالے سے آپ کو دکھائیں گے ذیشان قیوم کی یہ رپورٹ۔ گراؤنڈ اپنا، پچ بھی اپنی، لیکن نتیجہ بنگلہ دیش کے حق میں۔ راولپنڈی ٹیسٹ میں قومی ٹیم غلطیوں کے باعث میچ سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ آخری روز مقابلہ شروع ہوا تو توقع ڈرا کی تھی، لیکن مہمان ٹیم نے میچ کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ پاکستان نے دوسری اننگز 23 رنز ایک کھلاڑی آؤٹ سے شروع کی تو وقفے سے وکٹیں گرتی رہیں۔ دوسرے سیشن میں گرین کیپس 146 رنز پر آؤٹ ہوئی اور مہمان ٹیم کو صرف 30 رنز کا ہدف مل گیا۔ محمد رضوان 51 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ بنگلہ دیشی سپنرز مہدی حسن مراز نے 4 اور شاکب الحسن نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ Rizwan. Oh, he's chopped it on! About come the end of this test match. Either way, there's a big appeal. Is it just outside the line? He's given it. بنگلہ دیش نے 30 رنز کا ہدف 6.3 اوورز میں بغیر نقصان کے حاصل کر لیا۔ سن 2000 میں ٹیسٹ سٹیٹس حاصل کرنے کے بعد بنگلہ دیشی ٹیم کی پاکستان کے خلاف یہ پہلی کامیابی ہے۔ There you go. Bangladesh go on to create history. And they're all up in the stands standing and applauding the 2 youngsters who will remember this forever. ذاکر حسن 15 اور شادمان اسلام 9 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ 191 رنز کی شاندار اننگز کھیلنے والے مشفق الرحیم کو پلیئر آف دا میچ قرار دیا گیا۔ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ 30 اگست سے راولپنڈی میں ہی کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹیسٹ سیریز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ ذیشان قیوم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔
قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود کہتے ہیں کہ پہلے ٹیسٹ میں غلطیاں کیں جس کے باعث ناکامی ہوئی، اگلے میچ میں کنڈیشنز دیکھ کر ٹیم منتخب کریں گے۔ اسپنر جو ان کی طرف سے بھی کام آئے وہ آئی تھنک 5ویں دن پہ آئے ہیں، اور اس میں ہم اگر دیکھیں کہ کس طریقے سے گیم گیا ہے، ہمارے پاس کافی اپرچونیٹیز تھیں ایز اے سائڈ، بیٹنگ میں بھی بولنگ میں بھی، کہ ہم اس کو وہ اسپن کا فیکٹر نہیں ہوتا۔ آئی تھنک ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، گراؤنڈز مین کے پاس 2 دن ہے، اوبیسلی ہم دیکھیں گے کنڈیشنز کو اسیس کریں گے، اور جو ہمیں لگے گا بیسٹ پاسبل 11 ہوگی ہم اس کو فیلڈ میں اتاریں گے انشاءاللہ۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے کپتان نجم الحسن شانتو نے کہا ہے کہ گرم موسم کے باوجود کھلاڑیوں نے زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ راولپنڈی اسٹیڈیم میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے نجم الحسین شانتو کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش کے پاس میچ وننگ سپنرز ہیں، ہمیں معلوم تھا کہ راولپنڈی ٹیسٹ جیت سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میچ سے قبل پلاننگ اہم ہوتی ہے، دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں بھی اچھی کارکردگی دکھانے کی کوشش کریں گے۔ بنگلہ دیشی کپتان نے کہا کہ بنگلہ دیش کے شائقین کو راولپنڈی میں دیکھ کر خوشی ہوئی، امید ہے کہ وہ اگلے میچ میں بھی سپورٹ کرنے آئیں گے۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہلم آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ لاہور میں شبیہ تعزیہ کا مرکزی جلوس اندرون دلی دروازہ حویلی الف شاہ سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے، جو کربلا گام شاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے معظم الدین سے۔ معظم، آگاہ کیجیے گا جلوس کہاں تک پہنچا ہے اور سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت اندرون کے علاقے میں موجود ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چہلم کے موقع پر آج لاہور شہر کے مختلف مقامات کے اوپر مجالس اور جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ لاہور شہر کے مرکزی جلوس کی بات کروں تو مرکزی جلوس دلی دروازے حویلی الف شاہ سے برآمد ہوا تھا، جو کہ روایتی راستوں کے اوپر گامزن ہے۔ اگر میں لاہور شہر کی بات کروں تو آج لاہور شہر کے اندر 40 مجالس جبکہ 12 عزاداری جلوس نکالے جائیں گے، جبکہ لاہور شہر کا جو مرکزی جلوس ہے وہ اندرون دلی دروازے سے برآمد ہوا ہے اور وہ اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ مرکزی جلوس مسجد وزیر خان، خرادی محلہ، نثار حویلی، چوک کوتوالی سے سنہری مسجد پہنچے گا، جہاں پر عزادار جو ہیں وہ نماز ظہرین ادا کریں گے، جبکہ لاہور شہر میں نکالے گئے مختلف چھوٹے بڑے جلوس جو ہیں وہ بھی مختلف مقامات کے اوپر مرکزی جلوس میں شامل ہوتے جائیں گے۔ لاہور شہر کا مرکزی جلوس پانی والا تالاب، ٹکسالی، بھاٹی سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کر آج شام کو اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے راستے کو سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں، 3 سیکیورٹی حصار بنائے گئے ہیں، سیکیورٹی چیکنگ کے بعد ہی لوگوں کو شامل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ لاہور شہر میں 5000 سے زائد پولیس اہلکار جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ جلوس کے راستے کے اوپر سبیلے اور لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا ہے۔ تو لاہور شہر کا مرکزی جلوس جو ہے وہ اپنے روایتی راستوں کے اوپر گامزن ہے اور آج شام کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جی شکریہ معظم آپ کا۔ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ ملک کے دیگر صوبوں کی طرح سندھ بھر میں بھی چہلم حضرت امام حسین عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ صوبے کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں چہلم کی مناسبت سے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ کراچی میں چہلم امام حسین کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ جلوس اپنے مقررہ راستے ایم اے جناح روڈ، ریمبو سینٹر، ایمپریس مارکیٹ، ریگل چوک، تبت سینٹر، جامع کلاتھ مارکیٹ، لائٹ ہاؤس سے ہوتا ہوا امام بارگاہ، حسینیان، ایرانیان، کھارادر پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے راستے کی گزرگاہوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ شرکاء کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور رینجرز کی اضافی نفری تعینات کی گئی ہے۔ عمارتوں پر سنائپرز بھی تعینات ہیں۔ بام ڈسپوزل اسکواڈ کی جانب سے جلوس کے راستے کو کلیئر قرار دینے کے بعد مرکزی جلوس برآمد ہوگا۔ چہلم امام حسین کے موقع پر سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے موبائل سروس بھی معطل کر دی گئی ہے۔ ناظرین، 2021 میں طالبان کے حکومت پر قابض ہونے کے بعد سے افغان عوام بالخصوص خواتین پر ظلم و جبر کی ایک نئی داستان رقم ہوئی ہے۔ طالبان کے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد سے افغان لڑکیوں کے لیے ثانوی اور یونیورسٹی کی تعلیم سختی سے ممنوع ہے۔ طالبان نے خواتین کو تعلیمی، سماجی اور سیاسی زندگی سے باہر کر دیا ہے۔ حال ہی میں طالبان نے ثانوی جماعت سے اوپر کے تعلیمی پروگراموں پر بھی پابندیاں عائد کر دی ہیں، جو مقامی ریڈیو اور ٹیلی ویژن اسٹیشن پر نشر ہوتے ہیں۔ خواتین پر ظلم و جبر کر کے یہ پابندیاں طالبان کی وزارت تعلیم کے حکم پر لگائی گئی ہیں۔ طالبان کے افغانستان پر کنٹرول کے بعد 6ٹھی جماعت سے اوپر کی لڑکیوں کی تعلیم معطل کر دی گئی ہے۔ طالبان کی پابندیوں کے باعث خوست سمیت دیگر صوبوں میں مقامی میڈیا آن لائن تعلیمی پروگرامز نشر کر رہا تھا، جس نے عوام میں مقبولیت حاصل کی ہے۔ طالبان کی جانب سے میڈیا مینیجرز کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ریڈیو پر 6 سے اوپر کے گریڈ کے تعلیمی کورسز کی نشریات بند کر دیں۔ صوبہ خوست میں میڈیا کے نمائندے کہتے ہیں کہ اس اقدام سے نہ صرف لڑکیوں کی تعلیم کی آخری امید بجھ گئی ہے
बल्कि ज़राई इब्लाग के लिए आमदनी का एक अहम जरिया भी ख़त्म हो गया। हाल ही में यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान ने 14 लाख से ज़ायद अफगान लड़कियों को सेकेंडरी तालीम की रसाई से महरूम रखा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगान तालिबान ने ख़वातीन को तालीम से महरूम रखकर एक पूरी नस्ल के मुस्तकबिल को ख़तरे में डाल दिया है। प्राइमरी तालीम में दाखिला लेने वाले लड़के और लड़कियों की तादाद में 11 लाख की कमी आई है। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 80% लड़कियां तालिबान की वजह से तालीम से महरूम हैं। आखिर कब तक तालिबान अफगान अवाम बिलखुसूस ख़वातीन पर जुल्म व बर्बरियत जारी रखेंगे और आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए उनको बुनियादी हुकूक से महरूम रखेंगे। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से मालोला मक्खन तालका टंडो आदम डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में पाक आर्मी के साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर्स सांगड़ के डॉक्टर्स ने मरीजों का इलाज किया। मुख्तलिफ शोबा अमराज के माहिर डॉक्टर्स में गायनी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मेडिकल और पैथोलॉजिस्ट शामिल थे। मेडिकल कैंप में लेबॉर्ट्री टेस्ट और अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी मुयसर थी। मरीजों को मुफ्त अद्वियात और तिब्बी हिदायत मुहैया की गईं। मुतअद्दिद मरीजों के वैक्सीनेशन के साथ साथ हिफ्ज़ान सेहत और इब्तदाई तिब्बी इमदादी किट्स भी फराहम की गईं। मरीजों में 195 मर्द, 328 ख़वातीन और 426 बच्चों समेत 949 से ज़ायद मरीजों का इलाज किया गया। मुख्तलिफ अमराज में अनीमिया, मलेरिया, डेंगू बुखार, गैस्ट्रो, ग़िज़ाइयत, ज़ियाबतीस, हाई ब्लड प्रेशर, क़ब्ल पैदाइश की देखभाल वगैरह से मुताल्लिक़ इलाज मुआवजा और तिब्बी हिदायत दी गई। इलाका मकीनों ने पाक फ़ौज के फ्री मेडिकल कैंप का खैर मक़दम किया और मुफ्त इलाज और टेस्ट की सहूलियात मुहैया करने पर शुक्रिया अदा किया। आला सानवी तालीमी बोर्ड मुल्तान के सालाना इम्तहानात के प्री मेडिकल ग्रुप में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली गरीब घर की यतीम बच्ची हिफ्सा नूर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मेडल और 3 लाख रुपए इनाम मिलने के बाद डॉक्टर बनकर मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए पुरअज़्म है। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि कसूर के नवाही इलाके रोसा टिब्बा के शहरी ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे को मद्देनजर रखते हुए घर की छत और दीवारों को ही शजरकारी के लिए इस्तेमाल कर लिया है। घर खूबसूरती और दिलकश मनाजिर की वजह से तवज्जो का मरकज़ बन गया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं कसूर से सलमान यूसुफ। आपने पौधों की नर्सरियां और बागात तो देखे ही होंगे, लेकिन कसूर के नवाही कस्बा रोसा टिब्बा का एक घर खूबसूरत और दिलकश मनाजर की वजह से इन दिनों खूब पजीराई हासिल कर रहा है। इस घर की खास बात यह है कि इंतहाई कारीगरी के साथ ट्रिपल स्टोरी घर में इस अंदाज से पौधे लगाए गए हैं कि घर का एक हसीन दिलकश शादाब वादी का मंजर पेश करता है। जाती तब्दीली को मद्देनजर रखते हुए 2016 से लेकर अब तक 4000 पौधे लगाए हैं। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए अपने घरों में पौधे लगाएं और हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मालिक मकान का ये दावा है कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई घर नहीं जिसको इस दिलकश तरीकाकार से सजाया गया हो। अनोखी किस्म से तैयार किया गया ये घर देखने वाले को हैरत में डाल देता है। लोग इंतहाई खूबसूरत घर पर जब 4000 से ज्यादा पौधे लगे देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। जिला कसूर के रहायशी मियां मोहम्मद असगर ने अपने घर में 4000 पौधे लगाकर मुनफरद रिकॉर्ड कायम किया है। मियां मोहम्मद असगर का कहना है मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए उसने अपने घर को सरसब्ज और शादाब किया है। सलमान यूसुफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कसूर। आला सानवी तालीमी बोर्ड मुल्तान के सालाना इम्तहानात के प्री मेडिकल ग्रुप में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली गरीब घर की यतीम बच्ची हिफ्सा नूर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मेडल और 3 लाख रुपए इनाम मिलने के बाद डॉक्टर बनकर मुल्क और कौम की खिदमत के लिए पुरअज़्म है। हिफ्सा नूर की अनथक मेहनत की दास्तान बता रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। आला सानवी तालीमी बोर्ड मुल्तान के सालाना इम्तहानात में साइंस ग्रुप लड़कियों में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली लोधरा के पेन स्कूल की तालबा हाफजा नूर ने दूसरी पोजीशन हासिल करके अपने स्कूल का नाम रोशन कर दिया है। माली मुश्किलात का शिकार हाफजा नूर यतीम है और अपने चाचा के ज़ेर किफ़ालत तालीम हासिल कर रही है। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ की तरफ से आला सानवी तालीम बोर्ड के तालिब इल्मों की पजीराई और इन्हें मेडल देने के साथ इन तालिब इल्मों के हौसला बुलंद हुए और इन्हीं तालिब इल्मों में हफ्जा नूर भी शामिल है। मैं अपने वालिदैन और अपने टीचर्स की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं यतीम हूँ और मेरे वालिद साहब की 2013 में डेथ हो गई थी। मेरे ताया अब्बू ने हमारी परवरिश की है और मैं अपने कामयाबी के सारे ग्रेटिट्यूड अपने ताया अब्बू को देती हूँ। सीएम पंजाब मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारी अप्रिसिएशन के लिए सेरेमनी हेल्ड की, मुझे 3 लाख का कैश प्राइज़ और सर्टिफिकेट दिया। ये पहली मरतबा तारीख में ऐसा हुआ कि टीचर को टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। साथ मरियम नवाज़ ने ये ऐलान किया कि ये बच्चे जहाँ भी तालीम हासिल करेंगे, जो टॉपर्स हैं,
उनके तमाम तर अखराजात पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी। गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाली अफजल नूर ने माली वसाइल की कमी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया और दिन रात मेहनत करके मुल्तान बोर्ड में दूसरी पोजीशन लेकर साबित कर दिया है कि अंत तक मेहनत ही कामयाबी की ज़मानत है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम को सेहत के शोबे में बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर काम जारी है। सूबाई हेडक्वार्टर्स अस्पताल गिलगित में 850 बिस्तरों पर मुश्तमिल नए ब्लॉक की तामीर के पहले फेज पर 2 अरब 98 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस मंसूबे को सितंबर 2027 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। देखते हैं गिलगित से शेर मोहम्मद की ये रिपोर्ट। अस्पताल गिलगित में 850 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर का काम जारी है। इस बड़े मंसूबे पर काम का आगाज सितंबर 2023 में शुरू किया गया। फेज 1 2 अरब 98 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। के अंदर टेंडर करवा के इस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन हमने शुरू करवाई। ये बेसिकली फीडरल PSDP का प्रोजेक्ट है और रिसेंटली प्रोग्रेस आपके सामने है। हमारे मेन बिल्डिंग का काम भी जारी है तेजी के साथ। एक छत हमने डाली, दूसरी छत की तैयारी है। इस मंसूबे का सिविल वर्क 20% अब तक मुकम्मल किया गया है, जिसमें इमारत की 2 छतें, OPD ब्लॉक का बेसमेंट भी शामिल है। खवातीन और बच्चों के लिए वार्ड, गायनिकोलॉजी ब्लॉक के अलावा 200 गाड़ियां पार्क करने के लिए 2 मंजिला कार पार्किंग पर भी काम हो रहा है। अस्पताल में पहली मरतबा टेली मेडिसिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ डॉक्टरों के लिए रिहाइश ब्लॉक भी तामीर किया जा रहा है। याद रहे कि इस मंसूबे की तकमील से गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात घर की दहलीज पर फराहम होंगी और साथ साथ 2500 अफराद को रोजगार भी मिलेगा। शेर मोहम्मद, PTV न्यूज़, PHQ हॉस्पिटल गिलगित। गिलगित बल्तिस्तान से अब आपको लिए चलेंगे कोयटा की जानिब। कोयटा के नवाही इलाके कहान मरी की बाहिम्मत लड़की शहनाज मरी ने इलाके में गर्ल्स स्कूल ना होने के सबब बॉयज़ स्कूल से प्राइमरी तालीम हासिल की। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से अजीज मरी। शहनाज मरी कोयटा की एक बाहिम्मत बच्ची जिसने इलाके में गर्ल स्कूल ना होने की वजह से मोहम्मद सलीम के नाम से बॉयज स्कूल में क्लास 1 से 5वीं तक तालीम हासिल की। न्यू काहन मरी हजार गंजी कोयटा के नवाह का एक ऐसा इलाका जहां जिंदगी की कोई बुनियादी सहूलतें आज भी दस्तयाब नहीं। एक लड़की के लिए स्कूल पढ़ना कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि लड़की को पढ़ने के लिए खुद को सलीम के नाम से रजिस्टर करवाना पड़ा। शहनाज कहती है, हम 6 बहन भाइयों को पढ़ाना वालिदैन की ख्वाहिश थी, लेकिन दूर अफ्तादा न्यू काहान मरी में इस मिशन को पूरा करने के लिए बॉयज स्कूल में एडमिशन लिया और बॉयज यूनिफॉर्म में प्राइमरी तालीम के 5 साल पूरे किए। शहनाज मरी आज 8वीं जमात भी पास कर चुकी है। सेंटर पहले लड़कों का था, मुझे स्कूल पढ़ने का बहुत शौक थी। मैं लड़कों के कपड़े पहनकर स्कूल जाती। उस वक्त मेरा नाम मोहम्मद सलीम था। फिर मैंने सोचा हमारे दूसरे सहेलियाँ तालीम से महरूम है। फिर यूनिसेफ ने कोशिश करके लड़कियों के लिए अलग सेंटर खोला। मैं अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जाती। तालीम के साथ साथ हमें सिलाई कढ़ाई की काम भी सिखाया गया और अल्लाह की करम से आज हम और हमारे बहुत से सहेलियाँ जमायते हिश्तम पास किया। कोयटा के नवाह में न्यू काहन मरी हजार गंजी का ये इलाका 1990 के आखिर में इस वक्त आबाद हुआ जब मरी कबाइल अफगानिस्तान से अपनी सरजमीन बलूचिस्तान वापस आए। इस वक्त न्यू काहन मरी में तालीम और हुनर के नाम से बॉयज और गर्ल स्कूल यूनिसेफ के लर्निंग प्रोग्राम के तहत ऑपरेशनल हैं, जहां तालीम के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में हुनर भी सिखाए जाते हैं। न्यू काहन मरी जैसे पसमानदा इलाके से अज़म और हौसले से आगे बढ़ने वाली शहनाज बलूचिस्तान की तमाम कबाइल की तमाम बच्चियों और बच्चों के लिए मिसाल है। अज़म मजबूत हो तो बड़े से बड़ा चैलेंज पूरा करना नामुमकिन नहीं। अजीज मरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। सूबा सिंध के बजट में पीपल्स बस सर्विस के लिए 3 अरब 66 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगी सिद्रा फातिमा। सिंध हुकूमत ने सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन सफर का आगाज किया। ये मंसूबा सिंध के ट्रांसपोर्ट के शोबे में इनकलाबी तब्दीली लाया है। मंसूबे के तहत कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर में 290 डीजल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बसों के जरिए सफर की सहूलत दी जा रही है। इस मंसूबे में जदीद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जबकि खवातीन के लिए खुसूसी पिंक बस सर्विस भी शामिल है।
पीपल्स बस सर्विस के लिए सूबाई बजट 2024-25 में 3 अरब 66 करोड़ रुपए रखे गए हैं और हुकूमत सिंध पीपल्स बस सर्विस की ऑपरेशनल कॉस्ट को सब्सिडाइज कर रही है। सिंध हुकूमत मजीद बसें लाने और मजीद रूट बढ़ाने के मराहिल में है, जिसके तहत 500 इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसें पीपल्स बस सर्विस में शामिल की जाएंगी। इसमें जो प्रोक्योरमेंट इनिशियल हो चुकी है अभी तक, उसमें 12.94 बिलियन रुपीस जो है वो डिफरेंट हेड्स में जो प्रोक्योरमेंट की बसेस की, उसमें टैक्सेस, डॉलर पैरिटी, सब्सिडी की मद में खर्च किए जा चुके हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें 968 मिलियन जो हैं वो सिर्फ सब्सिडी में दिए गए हैं। सिंध गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी दे रही है फेयर में। जो फेयर है वो 50 रुपीज़ है, 40 रुपीज़ जो है वो सिंध गवर्नमेंट दे रही है राइडरशिप की सहूलत के लिए। शहरियों की सहूलत के लिए शुरू की गई पीपल्स बस सर्विस में लोग आरामदेह सफर कर रहे हैं, जबकि इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए बस की लाइव लोकेशन भी मालूम की जा सकती है। काफ़ी सहूलत है, लोकल बसों से तो बहुत बेस्ट है और किराया भी कम है, तो उस हिसाब से हमारे लिए ये बस बेस्ट है। इट्स अ हाफ पोर्शन प्रॉपरली डिवाइडेड है और जो कंडक्टर्स हैं उसको नोटिफाई रखते हैं कि आप जो है वो जो मेल सेक्शन है वो मेल्स में ही रहे, वो लेडीज सेक्शन की तरफ ना है। पीपल्स बस सर्विस की ऑपरेशनल मॉनिटरिंग के लिए कमांड एंड कंट्रोल यूनिट भी कायम किया गया है, जहां बसों के अंदर मौजूद सीसीटीवी कैमरे के जरिए मुकम्मल निगरानी की जाती है। पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स के इजाफे से न सिर्फ आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात में असर होंगी, बल्कि सिंध हुकूमत का आवाम से किया गया वादा भी पूरा होगा। सिद्रा फातिमा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़ते हुए यहाँ आपको बताते हैं कि मुल्क में बढ़ते हुए मौसमियाती तगय्युर और हिद्दत से महफूज रहने के लिए शजरकारी नागुज़ीर है। जामिया कराची में शजरकारी मुहिम का अहवाल सुहेल जमाली से। शहर कायद में बढ़ते हुए दर्जा हरारत से निमटने के लिए जहां सूबाई और बल्दियती हुकूमतें शजरकारी कर रही हैं, वहीं माशरे के दूसरे तबकात में भी ये शऊर बेदार हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर दर्जा हरारत के बढ़ने को रोका जा सकता है। जामिया कराची में मानसून की शजरकारी मुहिम शुरू कर दी गई है। शेखुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने पौधे लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। आबपाशी निज़ाम के तहत पौधों की सैराबी के लिए 1.5 किलोमीटर तवील पाइप मुख्तलिफ शोबों में बिछाए गए हैं, जिसमें 16 छोटे हाइड्रेंट मौजूद हैं। एक मैनुअल तरीका है कि टैंकर लगाते हैं, मैन पावर लगाते हैं और प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस नहीं होती। ड्रिप इरिगेशन से ऑटोमेटिकली पौधों को जो है वो पाइपलाइन के ज़रिए उतना ही पानी मिलता है जितना ज़रूरत है, और इस शहर के अंदर पानी वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा है। तो ड्रिप इरिगेशन इज़ अ टेक्नोलॉजी जिसके तहत आप पानी सेव करते हैं। शजरकारी मुहिम में समाजी तंजीम, सनतकारों और कारपोरेट सेक्टर ने भी ताउन किया है। हम लोगों ने पानी के सिस्टम डोनेट किया है कि पौधे पे पानी मिले, और बड़ा खुशी हुआ ये करने के लिए। कराची यूनिवर्सिटी कराची का एक सबसे हरा और बेहतरीन जगह बन गया है। अल्हम्दुलिल्लाह कई हज़ार पौधे जो इस वक्त लगाए जा चुके हैं, जिसमें कुछ फूलदार पौधे हैं, कुछ फल वाले हैं, कुछ सायादार हैं। ऑलिव के भी काफ़ी क्वांटिटी में यहाँ पे जो हैं पौधे लगाए गए थे, जो इस वक्त काफ़ी बड़े हो चुके हैं, एक दरख्त की सूरत में नज़र आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात से महफूज रहने के लिए पौधे लगाना एक अहम आमिल है। दरख्त और पौधे जहाँ हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, वहीं माहौल की आलूदगी को भी कम करते हैं, जो वक्त की अहम ज़रूरत है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, वेदर अपडेट में खुश आमदीद। मैं हूँ कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि सूबा बलूचिस्तान के ज़िला डेरा बुगटी में हालिया तूफ़ानी बारिशों से मुतासर होने वाले शहरों में सूबाई हुकूमत की जानिब से इमदादी सामान की तकसीम का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी इजाज़ सरवर, असिस्टेंट कमिश्नर डेरा बुगटी हसनैन अबड़ो और कमांडेंट कर्नल वहाब बिन कुयूम की हिदायत पर FC बलूचिस्तान के एहलकारों ने घर घर जाकर मुतासरीन में टेंट और राशन तकसीम किया। इस मौका पर मुतासरीन सूबाई हुकूमत, ज़िला इंतज़ामिया और FC बलूचिस्तान का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, मुल्क में वक्फे वक्फे से होने वाली हालिया मानसून बारिशों से दरियाओं और आबी ज़ख़ीरों में पानी की सतह काफ़ी हद तक बुलंद हो गई है और डैम भर गए हैं। तरबेला, मंगला और चश्मा के आबी ज़ख़ायर में पानी की आमद और अखराज मामूल के मुताबिक है। दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर पानी की आमद 1,74,200 क्यूसिक और अखराज 1,73,700 क्यूसिक है। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर आमद 40,200 क्यूसिक और अखराज 40,200 क्यूसिक है।
दरिया जहलुम में मंगला के मकाम पर आमद 18,500 क्यूसिक और अखराज 8,000 क्यूसिक है। जिना बैराज में पानी की आमद 1,85,800 क्यूसिक और अखराज 1,79,500 क्यूसिक, जबकि चश्मा में आमद 1,99,700 क्यूसिक और अखराज 1,80,000 क्यूसिक है। अब बात हो जाए कराची और सिंध में मुमकिना बारिश के सिलसिले की। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि कल से 31 अगस्त तक सिंध भर में तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहर कायद से हसन नासिर सिद्दीकी, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी हसन नासिर सिद्दीकी, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा मौसमियात ने कराची के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। शहर कायद में 27 अगस्त से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला 5 रोज तक वक्फे से जारी रह सकता है, जिससे अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में 25 अगस्त से मानसून का सिस्टम दाखिल हो चुका है। इसके अलावा बहर अरब पर हवा के कम दबाव के बायस थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, मटियारी, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, जामशोरो, दादू, कंबर शहदादकोट और शहीद बेनज़ीर आबाद में 31 अगस्त तक वक्फे से गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। मुमकिन बारिशों के सबब कराची समेत सिंध के तमाम अजला के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मुतल्लिक़ा इदारों और महकमों को निकासी आब की मशीनरी को तैयार रखने और बरसाती पानी की निकासी के लिए मामूर अमले को अलर्ट रहने की भी हिदायत की है। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी और जनूबी पंजाब, खित्ता पोठवार, इस्लामाबाद, शिमाल मशरकी, जनूबी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान जनूब मशरकी ज़ेर सिंध और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में कहीं आंधी चलने और मूसलाधार बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा, तहम जनूब मशरकी सिंध, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ ऐसे है। जिक्र करेंगे दालबंदीन का, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नौकुंडी में भी 41, चिलासौर से भी 41, जबकि दादू में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे खेल की खबरों का।